Recording. So good evening, children. In the previous class, we were studying about species and how species, the different members of the species respond to the environment. Okay, respond to the various type of changes which are there in the environment. We have studied the organisms can be categorized into three types. That is, they may be what you call. They may respond either by making their body conditions similar to that of the environment, okay, or that is by confirming, or they may be by what you call resisting the environmental condition to a constant state. है ना, बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, बाहर कुछ भी चीज हो, उससे कोई मतलब नहीं हो. दैट इज इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर जो है दैट विल बी कांस्टेंट और एस्मेटिक कंसंट्रेशन विल बी कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड कंफर्मर्स, और दे मे बी पार्शियली कंफर्म. And then further we have studied that the organisms can adopt different strategies in order to protect themselves from the adversities of the environment. Like they can migrate from one place to other, or they can suspend their biological activities, okay, till the favorable condition arise. And once the favorable condition arises, again they start behaving in a normal manner. So these were the two different type of the strategies which are adopted. Migration we already studied, is the movement of the organisms from unfavorable condition to favorable condition. It is a temporary movement, and when the condition restores, these organisms come back to their original places. The migration can be there for the few centimeter or few millimeter distance to the over the thousands of kilometers distance. Okay, so these are shown. This is a very common thing which is shown by the lowermost organisms like coelenterate to most developed organisms like human being, or mammals like polar bear and all. Okay, so these are the things which we are observing. And the second is that is suspend. That is where these organisms can suspend their biological activities. This may be summer sleep and winter sleep, that is the hibernation and aestivation, or they may be spore formation in some of the microorganisms like bacteria and fungi and others, to even certain number of plants. That is all the plants which are included in the cryptogams. Okay. Then we have even studied that there are some of the animals which are showing that is spore formation. Then we have even seen that the seeds in case of plants, or the food storing roots, stems, leaves, etc., they are also there in order to protect the main plant from the adverse conditions. ठीक है, वो भी हो सकते हैं. And किसी बैक्टीरिया में माइक्रोऑर्गेनिम्स के अंदर हमने पढ़ा कि वो they may enter in a stage of diapause. Okay, so these were the various things which we have studied, the various strategies adopted by the various organisms in order to protect themselves or prevent themselves from the adversities of the environment. Okay, so we shall start the next topic now. Okay, now the next is adaptation. Adaptation is a way by which an organism makes himself suitable for the changing environment. Okay, whatever is the environment, whatever type of environment is there, for that environment, certain organisms are well adapted. Their body is develops the changes which can cope up with the changing environment. So that is called adaptation. So while considering the various alternative to sustain the adverse condition available for the organisms to coping with the extremes in their environment, we have seen that there are some are able to respond through certain physiological adjustment. You can respond through certain physiological adjustment, while the others do it so behaviorally. कुछ तो हो सकते हैं कि बॉडी के अंदर ही कुछ चेंज कर लें, और कुछ हो सकते हैं कि अपने बिहेवियर में कुछ बदलाव डालें in order to make themselves suit to the environment. जैसे migrating temporarily to the less stressful condition, तो ये behavior है. ठीक है, फिजियोलॉजिकली एडजस्ट हो जाना मतलब जैसे किसी क्या नाम से किसी ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के अंदर लीव्स का थॉर्न्स के अंदर चेंज हो जाना, वो बिहेवियर नहीं है. That is not a behavior, that is the body is changed. ठीक है, तो ये हो गया ना. तो these responses are they are actually their adaptation.
So we can say that adaptation, अब adaptation की definition है, adaptation is any attribute of the organism that is morphological or physiological or behavioral that enable the organism to survive and reproduce in its habitat. अडेप्टेशन वो कोई चेंज है उसकी बॉडी के अंदर होने वाला कोई ऐसा परिवर्तन है ना, जो उस ऑर्गेनिज्म को, वो परिवर्तन कैसा कैसा हो सकता है, दैट कैन बी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर। हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ चेंज आ जाए, है ना, रंग रूप, साइज से, शेप के अंदर या कुछ चीज के अंदर, जैसे हमने बोला कि कैक्टस के अंदर जो है लीव्स हैव बीन चेंज्ड इनटू थॉर्न्स एंड द स्टेम हैज बीन बिकम फ्लैशी, तो ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है, ठीक है। या किसी बेल के अंदर जो है वो टेंड्रिल्स का बन जाना, वो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो सकता है, कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है उसका चेंज हो सकता है, ठीक है। और बिहेवियरल हो सकता है कि वो उसका अपना बिहेवियर चेंज कर ले, है ना। तो दैट एनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स habitat. Now, many adaptation have evolved over the long evolutionary time and genetically fixed. ठीक है ना। evolution होता क्या, adaptation होता क्या? देखिए, adaptation को we cannot say that the adaptation is something such thing which is desired by an organism and it is being made. Actually, adaptation is a mutation, है ना। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए आपको समझ आएगा। ओके, किसी ऑर्गन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, नाउ द म्यूटेशन कैन बी गुड और म्यूटेशन कैन बी बैड। इफ इट इज अ गुड म्यूटेशन, अगर वो म्यूटेशन फेवरेबल है, देन इट विल बी रिटेन्ड। जो इंडिविजुअल से रिप्रोड्यूस हो रहे होंगे उनको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा, तो ये ग्रेटर रेट से रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे। जिनके अंदर ये नहीं है वो स्लोअर रेट से रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी हायर फॉर दोज ऑर्गन्स व्हिच हैव दिस फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो वो कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन मॉडिफाइंग देमसेल्फ। और जबकि जो दूसरे ऑर्गन्स है जिनके अंदर ये नहीं मिल रहा है, वो स्लोली रिप्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है कि when the unfavorable conditions comes, these all individuals may die whereas these organs may survive. Over a period of time this will go on and a time will come where हम देखेंगे कि इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ चेंजेस जो हैं वही मिल रहे हैं, आपको वाले इंडिविजुअल्स नहीं मिल रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनमें ये चेंज नहीं है वो खत्म ही हो जाए हमेशा के लिए। दे मे ऑल्सो सर्वाइव अलॉन्ग विद देम, ये दोनों हो सकते हैं। म्यूटेशन के कारण कोई करेक्टर आया, नया करेक्टर आया, हो सकता है दैट में बी मोर फेवरेबल, बट उनके पहले भी तो दूसरे वाले चल रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल ये हार्मफुल है सो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कई बार हो सकता है कि दिस एज वेल एज दिस बोथ करेक्टर्स में और बोथ चेंजेस में साइमल्टेनियसली सीन। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज सॉरी द एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन इज अ म्यूटेशन which is more favorable, so that is being accepted, that is being chosen by the environment, and the other one which is less accepted, less suitable, so that is being eliminated. तो ये है adaptation. Adaptation को अगर हम अपना हाथ देखें, you all can look at your palm, the position of your thumb is come against the position of other four fingers. This is a very suitable adaptation, so we can hold the pen, pencil, any article, you can hold it in a better manner, ठीक है। अगर आप birds का पंजा देखेंगे, if you see on the birds will have 3 fingers in the front and the 2 fingers at the back, so they can hold anything. अगर ये कोई branch है तो वो अपनी 3 फिंगर आगे की तरफ और 2 फिंगर पीछे की तरफ रख करके उस ब्रांच को बड़े अच्छे से होल्ड कर सकता है, that is called perching, ठीक है। तो perching is an ability which is seen in the birds because of the 3+2 arrangement of their finger. Same is there in some of the reptiles like chameleon, ठीक है। तो उनके अंदर ये बेटर एडेप्टेशन है। अगर मान लीजिए पांचों उंगलियां एक साथ होती तो हम कैसे पकड़ते? All 5 fingers would have remained in the same direction. How would we hold anything? It would have not been possible for us to hold anything. तो ये एक adaptation है. Probably in the past all the 5 fingers were together, the arrangement was all together,
बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिजियोलॉजिकल एडवांटेज या मॉर्फोलॉजिकल एडवांटेज हो गया हमारा कि हमारी 4 उंगलियां जो है वो एक साथ रहती है और एक उंगली जो है छोटी उंगली, एक उंगली जो है उसके अगेंस्ट चलती है। तो ये जो उंगली अगेंस्ट है उससे हम किसी भी चीज को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा डरावना लग रहा है ये हाथ तो ये है। तो अडेप्टेशन ऐसे होता है, अडेप्टेशन जो है मतलब these are errors which and those errors which are suitable they have been retained and those which were unsuitable they have been eliminated। जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, जो भी जगह होती हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर कई सारे टाइप के चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस में कुछ अच्छे होते हैं, दैट इज बिन रिटन। नाउ वापस आते हैं वहां पे, दैट इज many adaptation have evolved over long evolutionary time are genetically fixed। तो ये क्या है, ये जेनेटिकली फिक्स हो गया। अब हमारा पंजा जो है वो जेनेटिकली फिक्स हो गया। ठीक है, अगर हमने पढ़ा एलेंस रूल कि वो जो ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट में रहते हैं या पोल्स में रहते हैं, उनका अगर कान जो है बड़ा रहेगा तो उसमें से हीट का ज्यादा लॉस होगा, तो वो उनके लिए लॉस वाला फीचर है। तो हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे अलग अलग टाइप के कान वाले रहे होंगे, लेकिन जिनके कान छोटे थे, जिनका बॉडी बड़ा था, उनके लिए एडवांटेज हो गया कि उनके हीट का लॉस कम होता है, सो दे इजीली सर्वाइव्ड। एंड वेयर एज दोज ऑर्गेनिज्म्स जो कि साइज में छोटे थे, जिनके की कान बड़े थे, उन लोगों के लिए वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया और वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते चले। सो ये इसका एडवांटेज। तो ये this is how the evolution is, the adaptation is taking place. So in the absence of an external source of water, kangaroo rat का एक physiological advantage दिया है। Kangaroo rat in North American desert is capable of meeting all its water requirement through the internal fat oxidation in which water is produced as a byproduct। हम जानते हैं जब भी कोई भी फूड ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, जब फैट इज बीन ऑक्सीडाइज तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस एंड वाटर इज बीन यूज। वो वाटर उनका एलिमिनेट नहीं हो रहा। हमारा वाटर जो है वो नाक के थ्रू निकल जाता है, वी ब्रीथ आउट, बट दे हैव एन एबिलिटी कि वो उस पानी को जो है वो कंडेंस कर लेते हैं और वो उसी को यूज कर लेते हैं। मोर एवर दे आर नॉट लूजिंग वाटर बाय देयर किडनीज। ठीक है, वो किडनी से भी सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे आर एलिमिनेटिंग यूरिक एसिड। तो देखिए, इट आल्सो हैज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट इट्स यूरिन as to minimal volume so that water is used to remove excreted products। so less water is used for removing that। तो इनके अंदर आपको दो अडेप्टेशन मिले, बहुत ही हाईली सुटेबल है कैंगरू रैट के अंदर, है ना। कैंगरू रैट्स के अंदर क्या मिल रहा है, पहला आपको क्या अडेप्टेशन मिल रहा है कि दे कैन conserve respiratory water to use in their body। और दूसरा क्या है, दे reduced loss of water in urine by highly concentrating it। ठीक है, you know the same thing is being seen in the camel। अब कैमल के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो क्या वो पानी को फिर वो मेटाबोलाइज नहीं, मतलब वो ऐसा कंजर्व नहीं कर सकते, बट वो अपनी बॉडी से पानी को एलिमिनेट नहीं होने दे रहे। वो अपनी बॉडी के, उनका जो यूरिन होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड है ना। इफ यू लुक एट इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स में क्या देखने को मिल रहा है अभी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, सिंस इट इज नॉट गिवन इन द बुक, प्रोबेबली इट मे नॉट बी आस्क्ड, बट हम बात करते हैं इंसेक्ट के अंदर। हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स आर द मोस्ट सुटेबल ऑर्गेनिज्म्स टू थ्राइव ऑन लैंड।
ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर जो है वो IN है ना। ये क्या हाल है बच्चे, तेरे को इंसेक्ट की स्पेलिंग भी नहीं आती है। IN ना। इंसेक्ट जो है उनके अंदर क्या क्या चीजें मिल रहा है, एक उनका बॉडी काइटिन से कवर हो गया, ठीक है, वो काइटिन जो है उनका वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देगा। दूसरा, वो वाटर को जो है यूरिक एसिड के अंदर चेंज कर देते हैं। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज ड्राई, डज नॉट रिक्वायर वाटर। वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो उसके एलिमिनेशन के लिए पानी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ना तो आप किसी इंसेक्ट को पानी पीते हुए देखोगे और नहीं उसको जो है पानी के बिना वो बड़ी आसानी से सरवाइव कर जाता है। फिर उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने लग गया, लाइक क्रस्टेशियंस एंड ऑल। इससे पहले वाले जितने भी मेंबर्स थे वो सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे, क्योंकि वो पानी में रहते थे या पानी वाले एनवायरनमेंट में रहते थे, तो दे रिक्वायर वाटर। पर अब इनके बॉडी के अंदर और चेंज हो गया कि इनको फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने लग गया, लार्वल स्टेजेस आ गई। तो देर आर वेरियस रीजन फॉर विच दीज इंसेक्ट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गन्स ऑन द अर्थ एंड दे आर थ्राइविंग टू इन द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशन, बड़ी आसानी से सर्वाइव करते हैं। देखिए प्लांट, डेजर्ट प्लांट्स के लिए बता रखा है क्या है, देखिए डेजर्ट प्लांट्स है ना। कैंगरू रैट का यहाँ पे दिया है ऑफ नॉर्थ अमेरिका और डेजर्ट प्लांट्स। हम वापस बात करते हैं डेजर्ट प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट्स है थिक क्यूटिकल, उनका क्यूटिकल कैसा है, थिक हो गया, मोटा हो गया, तो इससे क्या होगा, वो ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं होगा ऑन देयर लीफ सरफेस एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स। स्टोमेटा कहाँ चले गए उनके, स्टोमेटा आर इन डीप पिट्स, गड्ढे में चले गया। तो जब स्टोमेटा गड्ढे में चले जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये लीफ का सरफेस है, यू इमेजिन दिस इज द लीफ सरफेस। तो गलत टाइम आया बच्चे, लाइट ही नहीं आ रही है, देयर इज नो पावर है। हेलमेट चेकिंग फिर क्या बोला, टोका समझाया, छोड़ दिया। बच्चों पे ऐसे रहम करते हैं, वो बड़ों को तो बुला लेते हैं, फाइन ले लेते हैं 500 रुपए। बोला बेटा हैक लगाओ ना, बोल देते हैं, क्या बोला तुमने, सिर दुख रहा था मेरा। ये लीफ का सरफेस है ना, लीफ के सरफेस के अंदर जो स्टोमेटा वो ऐसे गड्ढे में चले गए हैं। तो स्टोमेटा जब गड्ढे में होते हैं, क्या है, देखिए पहली बात तो स्टोमेटा और हाईली रिड्यूस, और फिर भी अगर स्टोमेटा है तो वो स्टोमेटा कहाँ चले गए, गड्ढे के अंदर। तो गड्ढे में स्टोमेटा चले जाने से क्या होगा कि जब वाटर का लॉस होगा, व्हेन द ट्रांसपिरेशनल लॉस विल बी देयर, तो वो ट्रांसपिरेशन का पानी यहाँ पर रह जाएगा। हवा चलेगी, हवा चलेगी तो जो यहाँ का पानी है वो तो बह जाएगा। हवा कैसे चलेगी, नहीं अच्छा तुमने डोर खोल दिया इसलिए, नहीं नहीं अच्छा है। तो ये हवा चलेगी तो ये हवा ट्रांसपिरेशन से पानी निकला उसको ले जाएगी, लेकिन यहाँ अब तो पानी पड़ा ही रहेगा। सो द इमीडिएट एनवायरमेंट और जो लीफ के अंदर का पानी है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो ट्रांसपिरेशन इज एक्चुअली अ डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन इज अ डिफ्यूजन। तो यहाँ जितना पानी है और उसके बाहर जितना पानी है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दिस विल समहाउ मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। तो ट्रांसपिरेशन को ये समहाउ मिनिमाइज कर लेंगे। यहाँ मान लीजिए इतना सारा पानी था, है ना, हमने पढ़ा है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ जाता है, और यहाँ स्टोमेटा के गड्ढे के अंदर है, तो उस गड्ढे के अंदर जो है वहां पे भी काफी सारा पानी है। जो पानी वहां से बाहर आएगा वो तो हवा उड़ा के ले जाएगी, जो पानी बाहर आया वो तो हवा बहा के ले जाएगी, तो ये तो चला गया यहाँ से। लेकिन यहाँ का पानी, यहाँ हवा थोड़ी घुसेगी गड्ढे के अंदर। सो गड्ढे के अंदर जो पानी भरा हुआ पड़ा है वो पानी और लीफ के अंदर के पानी के वॉल्यूम के कंसंट्रेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो दिस इज समहाउ प्रिवेंटिंग द ट्रांसपिरेशन। तो ये देखिए
stomata are in the pits to minimize water loss through transpiration. They have also special photosynthetic pathway. Now CAM, बताइए क्या होता है CAM? दो बच्चे बैठे हैं ना उधर, दो ही हैं, तीन हो गए, चार हो गए? चार तो नहीं होंगे, एक तो यहाँ है, देखो तो कौन कर रहा है। तीन में तो एक में हो, दो आप ही है। हाँ बताइए, कैम क्या होता है बेटा? कैम प्लांट आता है 11th के 11th में छोड़ के आगे। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। हाँ, तो ये वाले केस के अंदर क्या हो रहा है कैम प्लांट के अंदर कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रात में फिक्स कर लेते हैं, है ना। दे आर द प्लांट विच कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो मैलिक एसिड के अंदर चेंज कर देते हैं, प्लस PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड दे विल स्टोर इट इनटू मैलिक एसिड, और वो मैलिक एसिड के अंदर बना करके स्टोर कर लेते हैं। रात में वो स्टोमेटा खोलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर रखेंगे, और रात में जो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन हो रहा उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा वो उसको मैलिक एसिड के अंदर चेंज कर लेंगे, और दिन में स्टोमेटा बंद कर देंगे। ड्यूरिंग डे दे कीप देयर स्टोमेटा क्लोज्ड, सो नो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये बड़े बड़े चतुर प्लांट्स हैं, ये बड़े चतुर प्लांट। चतुर रहेंगे, चतुराई चलेगी तभी जिंदगी चलेगी, है ना। तो इन्होंने अपने चतुराई बना ली है। यहाँ पे देखते हैं क्या है कैम प्लांट। पहले कैम को हम कलर चेंज कर देते हैं, उसको बना देते हैं पीच कलर का। 3 अडेप्टेशन हो गए हैं अपने अभी तक, है ना। वापस चेंज कर देते हैं कलर टू येलो। ओके, कैम प्लांट के अंदर क्या हो रहा है देखिए, that enable the stomata to remain closed during daytime। दिन में स्टोमेटा बंद रखना है, रात में स्टोमेटा खोलना है। दिन में स्टोमेटा बंद रखेंगे तो फिर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो उनकी जरूरत है फोटोसिंथेसिस की, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो रात में ही बना के वो रात को ही इसको स्टोर करके रख लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सम ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो इस फॉर्म में चेंज करके रखेंगे, और दिन में वही कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो ऑर्गेनिक एसिड है उसको ब्रेक करेंगे, उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उसको यूज करेंगे, और उससे जो ऑक्सीजन बनेगी दैट दे विल यूज इन रेस्पिरेशन। तो ये प्लांट ऑफ कोर्स देयर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विल बी वेरी वेरी पुअर, बहुत ही कम रहेगा, और इसीलिए ये प्लांट बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होती है। लेकिन जिंदगी तो चल रही है ना, लंबा छोटा बड़ा होने से क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, प्लांट छोटा हो चाहे प्लांट बड़ा हो, क्या फर्क पड़ रहा है? इफ दे आर सक्सेसफुली लिविंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सम ऑफ द डेजर्ट प्लांट लाइक ओपेंशिया है नो लीव्स। ओपेंशिया का एग्जांपल है नेक्स्ट, ओपेंशिया इज अगेन ए डेजर्ट प्लांट, और उसमें लीव्स ही नहीं होते हैं, जबकि लीव्स किस में चेंज हो गए हैं? वो थॉर्न्स में चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो थॉर्न्स में चेंज हो जाने से क्या होगा कि उसमें फोटोसिंथेसिस मिनिमाइज हो जाएंगे, तो हैव नो लीव्स, and the stem itself become green, fleshy and thick, and that will carry out photosynthesis. So the leaves are openchia have no leaves which are reduced into spine, उनकी leaf जो है वो spine में change हो गए, and photosynthetic function is taken over by flattened stem. Stem जो होंगे वो flat हो जाएंगे, green हो जाएंगे, fleshy हो जाएंगे, और वो food store करेंगे। ठीक है, we are in a state to write some of the adaptation of the desert plant, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। राइट 4 अडेप्टेशन और 5 अडेप्टेशन ऑफ द डेजर्ट प्लांट। तो प्लांट जो डेजर्ट में रहने के लिए सूट हुए हैं क्या है? पहला डेजर्ट प्लांट्स क्या अडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स। उन्होंने नहीं कहा मेरे फोन पे बात कराओ पापा से, डेजर्ट प्लांट्स लगाते क्यों नहीं हेलमेट? बारिश नहीं आ रही। ओके, डेजर्ट प्लांट में अडेप्टेशन क्या है? लीव्स आर मॉडिफाइड
into spines, stem becomes green, flat and fleshy. ठीक है। तीसरा स्टोमेटा और हाईली रिड्यूस्ड स्टोमेटा, लीफ हट ही गए हैं तो बात ही नहीं, अगर नहीं हट रहे हैं तो क्या होगा, स्टोमेटा becomes sunken to minimize water loss. फिर किसी किसी प्लांट के अंदर कैम मैकेनिज्म आ गया, क्रैसुलेशन मैकेनिज्म, क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म टू रिड्यूस। ये सारे जो तामझाम है वो केवल ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए है, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशनल लॉस, transpirational loss by keeping the stomata closed during day। ठीक है। फिर इनके जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप हो सकती हैं, रूट्स goes deep in soil to absorb water। ठीक है। और भी अडेप्टेशन हो सकते हैं क्या, कि आपको जो है मतलब इनमें फ्लावरिंग कब देखने को मिलेगी, फ्लावरिंग अकर्स ड्यूरिंग मॉनसून। ठीक है। साल में एक ही बार फ्लावरिंग होगी, मॉनसून के टाइम में होगी, तो ये और इसका अडेप्टेशन हो जाएगा, है ना। और हमने पढ़ा किसी किसी में जो है लीव्स वो फ्लैट हो जाती है, किसी में कैसे हो जाती है, किसी में क्या हो जाती है, तो ये सारे अडेप्टेशन आपको देखने को मिल जाए, है ना। उसमें से 3-4 अडेप्टेशन जो है ओपेनशिया में और सीए एम प्लांट कैम प्लांट में और डेजर्ट प्लांट के नाम पे इन्होंने बता दिए। तो हमने ये पढ़ लिया, अब हम आगे बात करते हैं। कितना भी 6 मिनट बचे हैं, बहुत होते हैं 6 मिनट। ओके, मैमल्स की बात कर रहा हूँ, एलेंस रूल अब आ रहा है आपका यहीं पे। ओके, तो मैमल्स कौन से हैं, मैमल्स जो ठंडी जगहों पे रह रहे हैं। मैमल्स फ्रॉम द कूलर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्ट ईयर्स। क्या है उनके, उनके कान छोटे हैं। कान छोटे होने से क्या होगा, हीट लॉस विल बी डिक्रीज। हमने पढ़ा कि हीट लॉस जो होता है वो सरफेस का फंक्शन है ना। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा हीट लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो सरफेस एरिया कम कर दो ना, कान से छोटे कर दीजिए, छोटे छोटे कान, तो कान छोटे होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कान तो होंगे ही होंगे, मैमल्स है तो कान तो होंगे ही होंगे, वो तो बैक नहीं हो सकता। एंड लिम्स, पैर भी छोटे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, पैर और कान छोटे हो जाने से क्या, मिनिमाइज हीट लॉस। इसको हम एलेंस रूल कहते हैं, इसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये तो जनरली पूछा ही जाता है कि व्हाट आर द अडेप्टेशन सीन इन द मैमल्स व्हिच आर लिव इन द पोलर रीजन, बट सीधा से ये पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलेंस रूल, एक्सप्लेन इट। तो यू मस्ट बी एबल टू टेल द आंसर। इन द पोलर सीज, है ना, जो सीज है पोल्स में, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक, वहां पे जो सील्स मिल रहे हैं, है ना, उसमें क्या है, थिक बबलर ब्लबर सॉरी, वो जो उनकी चमड़ी होती है उतनी मोटी हो जाती है कि उसमें फैट होता है। फैट होने से क्या होगा कि वो फैट जो है हीट लॉस को बचा के रखेगा। मतलब अगर हम क्या नाम से किसी किसी जो पोलर रीजन में मिलने वाली सील्स होती हैं और जो दूसरे जानवर होते हैं, इवन वेल्स वगैरह हैं, इवन शार्क्स वगैरह हैं जो उन जगहों पर रह रही हैं, तो उनमें इतनी इतनी मोटी आपको
फैट की लेयर मिलेगी। एंड इट हार्डली मैटर्स कि व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड। तो अगर हम पोलर रीजन्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर टेम्परेचर सब 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ क्या होता है पोल्स में जो है ऊपर तो अच्छी मोटी सी बर्फ जमी हुई है, करीब करीब 2 से 3 मीटर से 5 मीटर करीब। इतनी मोटी बर्फ जम जाती है कि आप उस पर गाड़ी चला लो, आप उस पर गाड़ी चला लीजिए आराम से। कारें चलती हैं आराम से, कारों की रेस लगती है कई सारी जगहों पे जो है, मतलब इट इज अ प्रैक्टिस कि वो जो है आइस के ऊपर कारें चला ले, ठीक है। और ये आइस की इतनी मोटी लेयर है, उसके नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का पानी है, 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर। नाउ व्हाई 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाई 4 डिग्री सेल्सियस बताओ, कौन बता रहा? कोई आवाज ही नहीं आ रही है उस साइड से आज, चित्रांश भी नहीं बोल यस सर। हाँ बोलो। पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री क्यों रहता है? मैंने इतना इतना पक्की तरफ से क्यों कैसे कह दिया कि 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे तुम्हारा हीटर लग रहा है टेम्परेचर मेंटेन कर। सर इवेपोरेशन की वजह से। इवैपोरेशन समुद्र के अंदर, क्या बोलती है चित्रांश? तुमको एनोमलिस डेंसिटी पता है वाटर की? हैव यू heard or studied about anomalous density of water? पढ़ा है क्या श्रेया? सर No, मैं sir. याद नहीं सर। क्या है? श्रेया कुछ बोल रही है, देखो सुनने दो। हाँ बोलो। सुना है बस। वाटर की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी, अरे यार द लिख रहा हूँ और डेंसिटी लिख रहा हूँ, दोनों फ्यूज हो गए, मर्ज हो गया। तुम डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। उससे क्या होगा? उससे क्या होता रहे, 4 डिग्री पे हो, 3 डिग्री पे हो, 2 पे हो या 5 पे हो, हमें क्या दिक्कत है, 10 पे हो भले। लेकिन देखिए, ये जो उन लोगों के लिए, उन नास्तिकों के लिए जो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, उनके लिए देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे ये समुद्र का लेयर है, सरफेस है। माउंट आबू में एक झील है, उसका क्या नाम है? नक्की झील, है ना? नक्की झील मान लीजिए आप, ये नक्की झील का पानी है ना? कैसे भी मान लीजिए कि ये पानी है। बाहर का टेम्परेचर जो माउंट आबू में सर्दियां आती है वो -4 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर इट इज। -2 लिख देता हूँ, नहीं तो आप 4 से ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए -2 डिग्री सेल्सियस हो गया फॉर ए वीक। पूरे एक वीक तक टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, ये जो पानी है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, वो अपना हीट यहाँ से रेडिएट करेंगे। हीट विल बी लॉस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो वो सारा हीट अपना हवा में लूज करेंगे। और जैसे जैसे इनका टेम्परेचर लूज हो करके, जैसे 10 डिग्री था, वो 10 डिग्री से 8, मतलब 7, 6, 5, 4 डिग्री हो गया। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, ये पानी भारी हो जाता है और नीचे चला जाता है। द टेम्परेचर बिकम हैवी, द वाटर बिकम हैवी, डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वो नीचे चल जाएगा, और नीचे से नया पानी आएगा, उसका टेम्परेचर वापस 10 डिग्री है। फिर वो 10 वाला जो है फिर हीट लॉस करेगा, 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4 होते, फिर वो पानी भी भारी हो जाएगा, वो नीचे चल जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, जैसे कन्वेक्शन, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारा का सारा पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। क्योंकि पानी 4 डिग्री पे हैवी है तो वो नीचे चला जाता है। डेंसिटी इज हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो वो नीचे चला जाएगा, नीचे से नया पानी ऊपर आएगा। फिर ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। 7 दिन के लिए टेम्परेचर 2 डिग्री है, -2 डिग्री सेल्सियस। पहले दिन शुरू का 1 मीटर का हो गया होगा शायद, फिर दूसरे दिन दूसरा नीचे का 1 मीटर हो रहा है। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट 7 डेज के लिए अपन ने बोला, फॉर ए वीक अपन ने बोला कि टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना, फॉर 7 डेज। तो 7 डेज के अंदर मान लीजिए पर एवरी डे मान लीजिए 1-1 मीटर का पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है अपना हीट लॉस करके। जो पानी नीचे से आ रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस का है, 10 डिग्री वाला अपना हीट लॉस करेगा,
हीट लॉस करके जब इसका टेम्परेचर 4 डिग्री हो जाएगा एक पूरे दिन भर के अंदर, वो नीचे चल जाएगा, नीचे से नया पानी ऊपर आया 4 डिग्री वाला, फिर वो हीट लॉस कर रहा है और फिर वो भारी होके 4 डिग्री पे पहुंच जाएगा, नीचे चला जाएगा, फिर नीचे से नया पानी ऊपर आएगा। ये करते करते मान लीजिए एक सप्ताह के अंदर पूरा का पूरा झील का जो है पानी 4 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट डे से भी अगर टेम्परेचर मान लीजिए अब ठंड बढ़ के -3 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, तो क्या होगा, अब तो 4 डिग्री वाला अपना हीट लॉस करके कितने का आएगा, -3 पे आ जाएगा। -3 वाला भी हल्का है, 4 डिग्री का पानी ही भारी रहता है, ठीक है। तो फिर वो यहाँ पे 4 डिग्री का पानी है, उसके बाद अब ये ऊपर का जो पानी है ये जो -10 था पहले, वो अब कितना हो गया, वो 4 डिग्री हुआ, 4 से फिर वो 3 डिग्रीज हो जाएंगे, 3 से वो 2 डिग्रीज हो जाएंगे, 1 डिग्री हो जाएंगे, अल्टीमेटली इट विल चेंज इनटू 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ आइस। यहाँ पे आइस जम जाएगी। अब आइस जब जम गई ना, तो आइस इज अ पुअर कंडक्टर। अब वो हीट क्या करेगी, आइस लूज करके, मतलब 0 डिग्री है, 0 से -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, नीचे का पानी वहीं रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस का। दिस इज द वाटर इन विच द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इवन इन द फ्रोजन लेक्स, ठीक है। ये 1 मीटर की आइस जो बन गई है ना, वो काफी है नीचे के ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव कराने के लिए। नीचे का हीट नहीं लॉस हो रहा, वो 4 डिग्रीज पे ही है, तो नीचे का पूरा समुद्र में या किसी लेक में, फ्रोजन लेक में, अंटार्कटिका में, आर्कटिक रीजन में, जहाँ पे भी बर्फ बनी है ना, वो नीचे तो वो डेफिनेटली पानी है, ठीक है, और वो पानी हमेशा 4 डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि वो सारा वो पानी है जो कि किसी टाइम में जो है कन्वेक्शन से अपनी हीट लॉस करके 4 डिग्री पे आ गया था, देन इट बिकेम हैवी एंड देन इट वेंट डाउन। तो इस टेम्परेचर पे 4 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ए वेरी इजी टेम्परेचर वेयर द ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव। तो वहां रहने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर थिक लेयर ऑफ फैट मिल रही है आपको, थिक लेयर ऑफ फैट, थिक, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लबर, बिलो देयर स्किन एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर। ये किसकी जैसे काम कर रहा है, टू रिड्यूस द हीट लॉस, ठीक है। नाउ सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म पॉजेस अडैप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल। अभी ये जितने भी अडेप्टेशन है, ये मॉर्फोलॉजी है, उनकी बॉडी के अंदर चेंज हो गया है, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। अब हम बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी, जो उनके मैकेनिज्म्स को चेंज करा रही है। मैकेनिज्म, फिजियोलॉजी क्या होती है, इज द मैकेनिज्म, है ना, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे कुछ भी इस तरह की जो एक्टिविटीज है। तो हमने पढ़ाई है 9th 11th क्लास के अंदर, हमने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो फिजियोलॉजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, विच अलाउ देम टू respond quickly to the stressful condition. If you ever been to any high altitude place, रोहतांग पास गए हो आप, रोहतांग पास नियर मनाली, yes sir, yes sir, गए हो तुम? तो अगर वहां जाते yes हैं तो sir. वहां वहां की हाइट है, मतलब ये दे रखा है, दैट इज अबाउ 3500 मीटर। ये क्या क्या मतलब है, 3500 मीटर कहाँ से? सर सी के नीचे से। सी के नीचे तो नहीं, सी के सरफेस से, सी के सरफेस से। अगर आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, जो तो आप करते ही होंगे, है ना, तो वहां पे करीब करीब हर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है क्या कहते हैं, लेवल फ्रॉम सी, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, है ना, हर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोटा के रेलवे स्टेशन पे लिखा है कि वो सी लेवल से 700 मीटर, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है कितना है, लेकिन मैं बोलता हूँ जैसे 700 मीटर लिखा है, तो मतलब अगर हम बॉम्बे जाएंगे सी लेवल तक, तो सी लेवल तक हमको 700 मीटर की मतलब ढलान मिलेगी यहाँ से वहां तक। और अगर बॉम्बे से इधर आ रहे होंगे तो हमको इतना मीटर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सी क्या है, पानी है, और पानी आप जानते हैं जहाँ कितना भी बड़ा लेवल होगा किसी भी वाटर बॉडी का, उसमें पानी का लेवल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, नहीं तो मैंने कौन सी पर्सनल बात कह दी। मान लीजिए ये कोई समुद्र है दुनिया भर का, दुनिया में यहाँ पे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में समुद्र है क्या? हाँ है ना, वहीं से तो चल के आए थे यहाँ पे नालायक। ये इंग्लैंड है और ये इंडिया है, मुंबई, जहाँ पे कल ड्रग्स पकड़ी गई थी।
वहां से लेकर के यहाँ तक अगर समुद्र का लेवल है, तो इसका मतलब वो इंग्लैंड का वो सरफेस और मुंबई का ये सरफेस एक ही लेवल पे है। अगर वहां से यहाँ तक अगर हम सड़क बना देंगे तो एकदम सपाट सड़क बनेगी, वो उस पे कोई स्लोप नहीं है। और इस जगह से समुद्र का लेवल मुंबई का या किसी भी जगह का हो, मुंबई हो चाहे केरला हो, मतलब कोचीन हो, केरला तो स्टेट हो गया, तो मुंबई हो चाहे कोचीन हो, समुद्र का लेवल एक ही है। चलिए, तो वहां से रोहतांग पास जो है वो 3.5 किलोमीटर ऊंचा है। The height of the Rohtang Pass from the Mumbai seaport or from any sea level of anywhere in India. India is being a peninsula, तीनों साइड समुद्र से घिरा हुआ है, तो किसी भी जगह से देख लीजिए आप, तो चाहे वो कोची एयरपोर्ट हो, चाहे वो ट्रिवेंड्रम हो, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी और जगह पे हो, चाहे, है ना, तो वहाँ जो वो जो जगह है वहां से लेकर के और रोहतांग पास जो है उसकी हाइट वो कितनी है, 3.5 किलोमीटर की है, 3500 मीटर की है। 3500 मीटर पे अगर हम जाएंगे तो वहां जो है मतलब ऑक्सीजन बहुत कम होगा। हम जानते हैं ऑक्सीजन बीइंग ए हैवी गैस, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो तो नीचे ही मिलेगी ना। अब मान लीजिए आप ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई, तुम चला भी करो, ये ऊंचाई है, ये 0 लेवल है, और यहाँ से ये 3500 मीटर हो गया। तो ऑक्सीजन बीइंग हैवी गैस वो तो नीचे। Sir, your microphone is off. एंड रिकॉर्डिंग भी चली गई अब ऐसी। तो ये 3.5 किलोमीटर का हाइट, ये 0 लेवल, 0 मीटर, और यहाँ है 3500 मीटर। तो ये जो एयर का ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का, वहाँ ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा आपको इस जगह पे मिलेगी, द रिच ऑक्सीजन। बॉम्बे के लोगों का दम नहीं घुटता, हालांकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, गाड़ियां बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सी लेवल पे है भाई, वो सबसे नीचे हैं, वो सबसे नीचे हैं, उनको तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, बीइंग डेंस गैस ऑक्सीजन नीचे रहती है। और यहाँ रोहतांग पास में हम चल जाते हैं ना 3.5 किलोमीटर, तो ऑक्सीजन वहां की सारी ऑक्सीजन जो है वो नीचाई पे चली गई है यहाँ। हाँ, मनाली, हाँ, और ऊपर भी जा सकते हैं हम, K2 पे चल जाएंगे वो सबसे ऊपर। तो यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, मान लीजिए मैं ये जो लाइंस बता रही हूँ ऑक्सीजन का लेवल बता रही है, यहाँ पे थोड़ी डेंसिटी कम हो गई ऑक्सीजन की, यहाँ और कम हो गई, है ना, यहाँ आते आते बहुत कम हो गई। अब ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, शुरू में हमारा दम घुटता है। तो जो माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं, जो जो लोग जो है माउंटेनियरिंग का मतलब हॉबी है जिनकी, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो उन लोगों को ये नहीं कहा जाता है कि तुम एक ही दिन में चढ़ जाओ ऊपर। उनको कहा जाता है कि उनको उनके लिए जगह जगह पे स्टॉप बनाए हुए होते हैं, उनके टेंट गड़ते हैं, उनके लिए कुछ फिक्स जगह है, जो वो कोर्स करते हैं, वहाँ पे जो उनके गाइड रहते हैं वो उनको बताते हैं कि भैया उस कैंप में आपको 2 दिन रहना है या 1 दिन रहना है ना। तो जब हम वहां पे जाकर के उन टेंट्स में रहते हैं, दैट इज द टाइम, उतने टाइम के अंदर हमारे अंदर जो काफी नया आरबीसी बन जाता है। सो ऑक्सीजन वी कैन नॉट इंक्रीज, लेकिन जितना ऑक्सीजन बॉम्बे वाले के लिए अवेलेबल है, उस ऑक्सीजन के लिए उनके आरबीसी कम होगा, तब भी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। हम कोटा में आ गए, मैंने कहा अगर 700 में तो नहीं, 700 मीटर तो नहीं हो सकता, मे बी जो भी है, अगर आप गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज द सी लेवल फ्रॉम, हाइट फ्रॉम सी लेवल, देख लेते हैं, अच्छी चीज है, जानकारी होनी चाहिए। कोटा फ्रॉम सी लेवल, Sir, 271 meters. 271 मीटर, 271 मीटर, मतलब हम करीब करीब, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3500 है, तो हम करीब करीब इस जगह पे मिल रहे हैं।
तो ऑक्सीजन की डेंसिटी तो ठीक ठाक है, मतलब कोटा में ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़े आराम से रह रहे हैं। रहते तो कश्मीरी भी बड़े आराम से, आपने देखे हैं कश्मीरियों को, गोरे चिट्टे एकदम पिंकी पिंकी नजर आते हैं। व्हाई दे आर अपीयरिंग पिंकी पिंकी? देखिए दो कारण है। पहली बात तो ऑक्सीजन लाइट धूप कम टाइम के लिए आती है तो उनके बॉडी में मिलानिन का फॉर्मेशन कम हो गया, और दूसरी बात उनमें आरबीसी ज्यादा है हमसे। आरबीसी ज्यादा है तो क्या होगा, जो थोड़ी ऑक्सीजन आ रही है उसको भी पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। ठीक है, अब याद करिए क्लास 11th में हमने पढ़ा था, जब ब्लड आ रहा है इन द एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई में से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो रही है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ तो पहले ही बहुत कम है। हम कह रहे हैं कोटा वालों के लिए अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है 156 mm ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है 156 mm ऑफ Hg है, तो इट मे नॉट बी सेम फॉर द पीपल हु आर लिविंग देयर, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम है पहले ही। तो हो सकता है वो 140 mm Hg रह जाए या 130। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन उनका कंपैरेटिवली कम होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा देंगे, तो नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाएगा। तो ये एक उनका क्या है, ये टेम्परेरी अडेप्टेशन है। और तो काफी बोल गया मैं इसके बारे में, है ना। तो दिस इज कॉल्ड ए टेम्परेरी अडेप्टेशन। टेम्परेरी अडेप्टेशन कैसा अडेप्टेशन होता है, ये मतलब हम लोग वहां पे जा रहे हैं ना, तो थोड़े दिन के लिए गए हैं ना, तो जब तक के लिए हम वहां पर हैं तब तक का ही अडेप्टेशन होगा। तो ये देखिए इसको कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन, लिखा होगा यहाँ कहीं। So if you ever been to any high altitude place, that is 3,500 meter Rotang Pass, Manali and Mansarovar in China occupied Tibet, वहां कौन जाने देगा, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है तो। एनीवे तिब्बत, ठीक है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। अगर आप वहां पे चलते जाएंगे, पहाड़ पे चढ़ते जाएंगे, आप वहां पे बाहर खड़े रहेंगे, आप अगर कार से जा रहे हैं और एकदम कार से निकल जाएंगे, तो आपको ना ऐसा लगेगा चक्कर सा आ रहा है। ठीक है, इवन कार्स गेट सफोकेटेड। जो फ्यूल का एवरेज होता है किसी कार का वो कम हो जाता है। एंड अगर आप लंबे टाइम तक चला रहे हो तो कई बार कार बंद हो जाती है अपने आप से, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो कार इज ऑल्सो गेटिंग लेस ऑक्सीजन। अब आप उसको वो 100 की स्पीड पे चलाना चाहोगे तो यू विल नेवर गेट दैट स्पीड बड़े आराम से वहां पे। ठीक है, और मिलेगी तो क्या होगा, अनबर्न का फ्यूल जो है उसमें काफी ज्यादा निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। दिस सिम्टम कैन इंक्लूड नोजिया। इसमें क्या क्या आ रहा होगा आपको, इस सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिल रहे होंगे आपको। नोजिया मतलब जी मतलाएगा, है ना, फटीग थकावट होगी क्योंकि ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। एंड हार्ट पल्पिटेशन, आपका दिल जो है वो जोर जोर से धड़केगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हायर एल्टीट्यूड एंड लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, हाइपोक्सिया रहता है वहां पे, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लिमेटाइज, ये वर्ड याद रखिएगा, एक्लिमेटाइज। ये टेम्परेरी अडेप्टेशन है। आपकी बॉडी जो है वहां जाकर के थोड़े टाइम के अंदर एक्लिमेटाइज हो जाती है ना। आपकी बॉडी एक टेम्परेरी एडजस्ट हो जाती है, इसको कहते हैं एक तरह का एडजस्टमेंट, है ना। तो वो कैसे होगा, बाय इंक्रीजिंग द आरबीसी नंबर and stop experiencing the altitude sickness. How did your body solve the problem? तो हमारी बॉडी ने क्या किया, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन बना दिए। हीमोग्लोबिन आरबीसी ज्यादा हो गया, आरबीसी ज्यादा होगा, जो कम से कम आपको ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है उसको भी हम जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा, द बॉडी कंपनसेट द लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन and decreasing the binding affinity of hemoglobin with the decreasing the binding affinity of hemoglobin and increasing breathing rate। तो ये सारी चीजें करेंगे वो, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन जो है वो फट से हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। मेनी ट्राइब्स लिव इन द हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय फाइंड दे नॉर्मली हैव हायर रेड ब्लड सेल्स काउंट, तभी तो वो पिंकी पिंकी नजर आते हैं। और अगर आप हिमालयन रीजन में रहने वाले लोगों को देखेंगे, उनका सीना चौड़ा मिलेगा आपके सीने से, आपके चेस्ट से उनका चेस्ट जो होगा वो चौड़ा रहेगा। तो दैट इज दे आर ब्रीदिंग मोर एयर पर मिनट। ठीक है, हम लोग जितना लेते हैं उससे वो ज्यादा एयर अंदर लेंगे, तो ज्यादा एयर अंदर लेने का मतलब देयर विल बी मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर ऑक्सीजन। ठीक है, जितना ऑक्सीजन हमको यहाँ मान लीजिए कि 1 लीटर हवा में मिल रहा होगा, वहां पे वो शायद उतना ऑक्सीजन 1.25 लीटर हवा में मिल रहा होगा, या कि और ज्यादा में।
तो इसलिए उनका लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो ये सारे अडेप्टेशन है। पुरानी फिल्मों में अगर आप देखेंगे, पुरानी फिल्में, बहुत पुरानी फिल्में, ब्लैक एंड व्हाइट या उससे थोड़े से बाद की फिल्में, तो आप देखेंगे वहां पे एक ही बीमारी सबसे कॉमन होती थी। आजकल तो बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई, अब तो कोरोना पे फिल्में बनेगी आने वाले टाइम में, है ना। एड्स पे फिल्में बनी काफी सारी, लेकिन उस जमाने की फिल्मों में सबसे बड़ी बीमारी जो है टाइफाइड होती थी, निमोनिया होता था। तो निमोनिया में क्या हो रहा है, निमोनिया में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उन लोगों को क्या सलाह देते थे कि जाओ भाई पहाड़ों पे जाके रह लो, उसको कहते हैं सेनिटोरियम। ठीक है, पीपल वर एडवाइज टू लिव इन सेनिटोरियम। तो सेनिटोरियम में रहने से क्या होता था, उनको ऑक्सीजन मतलब उनका आरबीसी लेवल अपना बढ़ जाता। फिर अगर वो प्लेन पे आते थे, बॉम्बे आते थे, तो वो बड़े आसानी से जीते थे। तो ये एक तरीका है एक्लिमेटाइजेशन का, आर्टिफिशियल बेनिफिट। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ें क्या, क्या पढ़ेंगे, काफी बड़ा है। तो हम यहीं तक पढ़ते हैं, आज खत्म नहीं हो पाएगा, तो हमको इसको कल की क्लास के लिए पेंडिंग रखते हैं। सो गुड डे चिल्ड्रन, एंड इफ यू फाइंड, Thank you, sir. ऐसे बोलता हूँ, कोई पूछता तो है नहीं।